And in an embarrassment, Galgotia's University has been asked to vacate its stall at the ongoing India AI Summit in the national capital following controversy over Chinese robo-dogs at display. The university came under fire for allegedly presenting a Chinese robo-dog as an Indian innovation, an indigenous innovation. And after uproar on social media, Galgotia's University issued a clarification. They said that the dog is in fact made outside of India, and they've never claimed that they made the dog indigenously. The robo has not been made by Galgotias. That's what they clarified. However, IT Ministry officials have now instructed the university to leave the AI Expo, removing them from the summit entry. Meanwhile, Rahul Gandhi was also quick to jump on the row. He said that instead of leveraging India's talent and data, the AI Summit is a disorganized PR spectacle, and India data is up for sale. Chinese products are being showcased as made in India. Galgotia's University Professor Neha Singh clarified that they never claimed that they manufactured the robo-dog. She said that we bring many such projects from all across the world so that we can teach our students, and our students can research with them, observe them, and then decide if they can create something similar. Listen in. उनका ये हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया, हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज़ से लाए। एज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जैसे हमने ये सेंटर फॉर ड्रोन इंटेलिजेंस एंड सिमुलेशन बनाया है, एनवीडिया लैब है हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, तो हम चाहते थे बच्चे उसको देख के अपने मॉडल्स, अपने प्रोटोटाइप्स बनाने की कोशिश करें। एज अ पार्ट ऑफ द एआई इन्वेस्टमेंट हमने उसको यहाँ शोकेस किया क्योंकि वो बहुत इंटरैक्टिव था और बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोशिश करते हैं खुद बनाने की, पर हमने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि वो हमने बनाया है। देखिए, मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज़ करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज़ गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीज़ों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी क्यूएस रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। And that robo-dog on your screens right now, which has come under controversy, it's in fact the center of controversy. The Greater Noida-based institution, Galgotia, has faced immediate action after a viral video from the event earlier showed its representative presenting a Chinese-made robo-dog as a product developed by University's Center of Excellence. The robo in question is the Unitree Go 2, which is a commercially available model from the Chinese robotics company Unitree that is sold online in India at a price of 2 lakh rupees to 3 lakh rupees. At the summit, the machine was displayed and referred to as Orion. A video that spread rapidly on social media captured a woman identified in reports as a university representative explaining the robo's features during a media interaction at the summit and calling that robo made in India, made by the university itself. One of my colleagues has spoken to Neha Singh, the woman in question, who is a representative of Galgotia, and who earlier said that Orion, in fact, has been developed by Galgotias. Take a look. गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद के बाद से उस डिवाइस को यहाँ से हटा लिया गया है और पूरी तरीके से इस जगह को यहाँ से खाली कर दिया गया है, और अब जो है यहाँ पे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। और नेहा मैम, एक बात बताएं कि किस तरीके से जो पूरा जो कंफ्यूजन हुआ उसको लेकर? आई एम वेरी हैप्पी कि आपने कन्फ्यूजन वर्ड यूज़ किया। दैट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि अगर कुछ मिस इंटरप्रेट हुआ है, क्योंकि जो हम कहना चाह रहे थे वो शायद बहुत स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आया। सो व्हाट वी रियली वांटेड टू एक्सप्रेस टू द ऑडियंस इज दैट Galgotia's University is incurring huge investments in artificial intelligence. That robo-dog was one such investment. We have given it our name, Orion.
वो यूनिवर्सिटी में क्या क्या करता है हमने ये सारी चीज़ें बताई, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं हमने वो बताया। वी नेवर क्लेम्ड कि ये हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है इसका, वी कुड नॉट, बिकॉज वी आर नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वी आर एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। तो हम बच्चों को ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी से ऑल अक्रॉस द ग्लोब इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये कन्फ्यूजन हो गया, ये मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, विच हैज़ टेकन द इंटरनेट बाय स्टॉर्म फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इसको ठीक करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम एक बहुत रिस्पॉन्सिबल संस्थान है, हम इसको अपनी नैतिक और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इस चीज़ का आज क्लैरिफिकेशन कल दे चुके हैं, आज दोबारा देते हैं कि वी हैव नॉट मैन्युफैक्चर्ड इट, इट इज़ we cannot, we are an academic institution, we have only introduced it to our students as a part of our investment so that students can curate, experiment, innovate better, और ऐसी चीज़ें गलगोटिया यूनिवर्सिटी करता रहेगा। चाइना जिस तरीके से क्लेम कर रहा है कि ये तो हमारे यहाँ बना, तो आपको क्या लगता है देखिए कि ये आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे चीज़ें कैसे इंजीनियर्ड हो जाती हैं, ठीक है, उसमें वेरासिटी कितनी है आप देखेंगे। जो पहली रील वायरल हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कही गई हैं और जो वीडियो में है वो कहीं अलाइन नहीं है, बट मैं उस पर बहुत टिप्पणी करना नहीं चाहती हूँ, बिकॉज मैं अपने बिहाफ पे और अपने इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे यही बोलना चाहती हूँ कि वी आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन। एंड आप हमारी QS रैंकिंग्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए नहीं, हम हमारे वैल्यू सिस्टम और लेगेसी के लिए भी जाने जाते हैं।